باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام باقی تھے۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ اس دوران اپنی شدید ترین مصروفیات کی بنا پر وہ سب کچھ بھول گئی تھی، درخت کے نیچے ملنے والا پتھر بھی اور شکریہ کے وہ الفاظ بھی۔ کوئی بات اسے یاد نہ رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب جب سب اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے تب اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک آئینہ ہی تو تھا جو اس کو کبھی کبھی اس کی اہمیت کا احساس دلا دیتا تھا، اور وہ سوچنے لگتی کہ کچھ بھی ہو وہ اب بھی ان سب سے اچھی، سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہو، لیکن آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی حسین اور قیمتی جوڑا پہنے۔ یہ خواہش بڑی شدید تھی اور وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار نے جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اس وقت اسے کوئی دیکھنے والا ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفتن اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشم بددور۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آواز بالکل صاف شفاف آئی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے اندازے میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں آخر؟ اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اس تصور کے ساتھ اچانک ہی ایک اور انکشاف بھی ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، اور اس سے بھی پہلے اس نے یہ آواز سنی تھی اور اب پہلی بار اس پر غور کیا تھا۔ اوہ، یہ نرم نرم انداز! یہ آواز اس سے پہلے بھی اس نے سنی تھی، وہاں جب ایک دو ہتھڑ اس کے جسم پر پڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کسی نے اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا، مگر کون تھا وہ؟ یہ صرف وہم؟ کیا یہ صرف وہم تھا؟ لیکن اس وقت تو اس نے اس کا لمس بھی محسوس کیا تھا، اور آواز جس میں ایک نصیحت کی گئی تھی کہ وہ یہاں نہ آئے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کچھ پاگل ہو گئی ہوں شاید مجھے کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ چونکہ سب خوابگاہوں میں جا چکے تھے۔ وہ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی اور تکیہ اونچا کر کے دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اچانک اسے اس پتھر کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے مسحری کے برابر کی دراز کھولی اور پتھر نکال لیا۔ اس بار اس نے بالکل اجنبی نگاہوں سے اس پتھر کو دیکھا اور سوچا کہ کیسا پیارا پتھر ہے۔ پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت ایک دم سے بھڑک سا اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ وہ حیرانی سے اس پرندے کو دیکھنے لگی۔ پرندہ فضا میں کئی چکر لگا کر اسی روشن دان سے باہر نکل گیا، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اچانک اور 2-3 پرندے اندر گھس آئے اور وہ سکتے کی عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک ان کی جسامت بڑھنے لگی۔ عشیرہ کا دل کمپنیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے دہشت جھانکنے لگی۔
उसने बगौर देखा, ये चमगादड़ें इंसानी हैबियत इख्तियार करती जा रही हैं। अजीब सी शक्लें थी उनकी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी दहशत की वजह से ना निकल सकी। खौफ से उसके पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त एक चमगादड़ ने गर्दन खम करके कहा, हमसे डरने की जरूरत नहीं अशीरा, हम तुम्हारे अपने हैं। हम किसी भी हालत में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारे एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम कर देंगे। हमसे बिल्कुल खौफ ना खाओ। काश हम किसी खूबसूरत शक्ल में तुम्हारे सामने आते और तुम हमसे खौफ ज़दा ना होती। अशीरा ये तमाम बातें सुन रही थी। बड़े साफ शिफाफ अल्फाज थे और वो देख रही थी कि ये अल्फाज उन चमगादड़ों के मुंह से ही निकल रहे थे। उनके अंदाज में यकीनन एहतराम था। उसने सोचा, क्या वो पागल हो गई है? क्या ये ख्वाब है? वो आंखें मलने लगी, लेकिन वो ख्वाब नहीं, दर हकीकत अजीबोगरीब मखलूक उसके सामने थी। उनकी शक्लें बेशक बेहानक थीं, लेकिन अल्फाज और लहजा बेहद नरम था। अशीरा को अचानक ही यूं लगा जैसे उसके अंदर हिम्मत की एक लहर बेदार होती जा रही है। वो हिम्मत करके बोली, तुम कौन हो? अब तुम्हारे खादम, तुम्हारे गुलाम। हमें हुक्म दो, हम क्या करें? हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं अशीरा। हमें हुक्म दो। मगर तुम तो परिंदे हो। वो मासूमियत से बोली। हम क्या हैं इसका अंदाजा तुम्हें अभी नहीं हो सकेगा अशीरा। हमारे मालिक ने भेजा है। मालिक? वो कौन? अफसोस, हमें ये बताने की इजाजत नहीं है, जवाब मिला। मगर मेरी बात तो सुनो। हमें हुक्म दो अशीरा, हम आपके लिए क्या करें? देखो, मैं डर रही हूं, मुझे डर लग रहा है। मेरे बदन ने पसीना छोड़ दिया है। मैं बेहोश हो जाऊंगी। नहीं, आप हमसे बिल्कुल खौफ ना खाएं। गुलामों से खौफ नहीं खाया जाता। मगर तुम मेरे गुलाम कहां से हो गए, ये बताने की हमें इजाजत नहीं है। वक्त आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। और वो वक्त कब आएगा? बहुत जल्द, जब हमारे आका का हुक्म होगा। मेरी बात सुनो अशीरा, आप हमें इजाजत दीजिए कि जो लोग आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, हम उनके साथ बुरा सलूक करो। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ। मैं ना बेवकूफ़ हूँ, ना ख्वाबों में रहने वाली। ये सब कुछ जो मैं सुन रही हूँ, जो कुछ मैं देख रही हूँ, ख्वाब है कि हकीकत? ये हकीकत है। आपके बुरे दिन गुजर गए। अब कोई आपको आंख नहीं दिखा सकेगा। हम आपके खिदमतगार हैं। हम आपकी खिदमत के लिए हर लम्हा हाजिर हैं। अशीरा खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगी। अजीबोगरीब परिंदे एक कार्नस पर बैठे हुए थे और उसी तरह गर्दन झुकाए हुए थे जैसे वाकई वो उसके गुलाम हों। कभी कभी अशीरा के होंठों पर एक मुस्कुराहट सी चमक उठती थी और वह सोचती थी कि अगर ये कोई ख्वाब है तो वाकई उसने अनोखा ख्वाब और कोई नहीं हो सकता। वो ख्वाबनाक आंखों से उन्हें देखती रही और परिंदे उसी तरह बैठे रहे। फिर उनमें से एक परिंदे ने कहा, हमें कोई काम बताइए। आपका कोई का भी काम हम करके हमें खुशी होगी। अशीरा हंसने लगी। फिर उसने कहा, भला मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम क्या काम कर सकते हो? वो सारे काम जिनकी आपको जरूरत हो। आप बेधड़क हमें अपना काम बता दिया करें। तुम नन्हे नन्हे से परिंदे, बेशक तुम्हारी शक्लें इंसानों जैसी हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ पांव तो इंसानों जैसे नहीं हैं। इन नन्हे नन्हे हाथ पैरों से भला तुम क्या कर सकोगे? वो सब कुछ जिसका आप हुक्म दें। चलो ठीक है, जब मुझे कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब तुम जाओ। अशीरा ना जाने क्यों कुछ बेखौफ सी हो गई थी। शायद अब उसे यकीन हो गया था कि वो कोई बहुत ही दिलचस्प ख्वाब देख रही है। एक ऐसा ख्वाब
जो जागती आंखों से भी देखा जा सकता है। वो इन परिंदों को देखती रही और परिंदे अपनी जगह तब्दील करते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, हम हाजिर होते रहेंगे, अगर हमसे आप खौफ ना खाएं तो आपको तकलीफ होगी। आप दिल से खौफ निकाल दें, हमारे जाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी और आप यकीनन हमारे बारे में सोचती रहेंगी, इसलिए आप ये शरबत पी लें, आपको पुरसकून नींद आ जाएगी। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाया और अशीरा ने उसके हाथ में एक खूबसूरत बलोरी गिलास देखा जिसमें हल्के गुलाबी रंग का कोई शरबत था। अशीरा हैरान जरूर थी, लेकिन ना जाने क्यों उसका हाथ गिलास की जानब बढ़ गया। दूध जैसे गाढ़े शरबत से नफीस खुशबू उठ रही थी। न जाने वो क्या था। उसने तीनों को देखा और गिलास उनके हाथ से लेकर मुंह से लगा लिया। फिर गिलास उसी वक्त हटा जब शरबत खत्म हो गया। इतना खुश ज़ायका शरबत उससे कबल उसने कभी नहीं पिया था। एक लम्हे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म फूल की तरह हल्का हो गया हो। पूरे बदन में एक खुशगवारी सी कैफियत पैदा हो गई और फिर अचानक उसकी आंखें बोझल होने लगी। वो आंखों को भींचकर सर झटकने लगी, लेकिन नींद इसी तरह टूटी कि फौरन ही तकिए पर सर रखकर ही नींद से वो सो गई। और फिर सुबह को जब उसकी आंख खुली तो धूप का एक धब्बा उसकी मसहरी के सामने दीवार पर मौजूद था। ये धब्बा ठीक 7:45 बजे यहाँ तक पहुँचता था। अचानक ही उसके जहन में एक ज़रब सी लगी, 7:45 बज गए, आ गई मौत। उसने बदहवासी से सोचा। ठीक 8 बजे घर के तमाम अफराद नाश्ते की मेज पर होते थे और उन्हें नाश्ता दे देना उसकी जिम्मेदारी होती थी। गोया सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। उसके हाथ पांव फूल गए। आज जरूर मौत आ जाएगी। उसे नाश्ता नहीं मिला तो वो सब के सब उसे खा जाएंगे। सिर्फ एक लम्हे ये सोच जहन पर रही। उसके बाद वो बिजली की तरह मसहरी से उठ गई। उसके जिस्म पर वही कपड़े थे जो उसने रात को तब्दील किए थे। इस वक्त ये कपड़े भी उसके लिए वबाले जान बन गए। उन्हें उतारने में भी 2-3 मिनट खर्च हो जाएंगे, और अगर उन्होंने उन्हें इस कपड़ों में देख लिया तो मज़ीद मुसीबत आ जाएगी। मेरे अल्लाह, मुश्किल आसान कर। उसके हल्क से रुंधी हुई आवाज निकली। कपड़े बदलना जरूरी था, वरना हजारों सवाल किए जाते। पूछा जाता कि बीबी रात को तैयार होकर कहाँ गई थी, खास तौर से मशीरा बेगम, जो उसके लिए बहुत बड़ा अजाब थी, और यूं लगता था जैसे उनकी ड्यूटी सिर्फ उसी पर लगी हो। एक एक बात पर नुक्ता चीनी, कपड़े बदलने के सिवा और कोई चाराकार नहीं था। उसने बड़ी फुर्ती से कपड़े बदले, मुंह पर उल्टे सीधे छींटे मारे, बालों को भी नहीं संवारा और बावर्ची खाने की तरफ चोरों की तरह दौड़ी कि कोई उसे रास्ते में देख ना ले। मशीरा खाला के लान तान उसके कानों में गूंज रही थी। वो कह रही थी, घोड़ी हो रही है, दीवानी हो गई है, कैसी मस्त नींद सोती है, कम वक्त सो गई होगी, जरा देखो ज़हरा, उसका कोई हल निकालो, ये हाथों से निकली जाती है। इसी तरह की बेशुमार बातें हाँफते कांपते दिल से वो बावर्ची खाने में दाखिल हो गई। उसे तो कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था, क्योंकि झूठ बोलने की आदत नहीं थी। दरवाजे से अंदर कदम रखा तो अचानक ही दिल पर एक घौंसा पड़ा। पांव अपनी जगह जम कर रह गए, हाथ पांव कुछ और फूल गए। ना जाने नाश्ता किसने तैयार किया था। तमाम नाश्ता तैयार था। चाय का पानी केतली में खोल रहा था। हर चीज करीने से लगी थी। या खुदा, क्या घर वालों ने उसे सोते हुए देख लिया है? किसी और ने नाश्ता तैयार किया है? अगर ये बात है तो फिर तो आज सारे बाल नोच लिए जाएंगे। Come and fly away with me.
me fly.